Hello, welcome back to my channel Awesome Learning. Transcription in prokaryotes was done with you all. Now we are going to start with transcription in eukaryotes. And you see, in eukaryotes, there are two additional complexities. Two complexities we are facing here. One is there are three RNA polymerases. ओके थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेसेस ये कॉम्प्लेक्सिटी है आप प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेस है एंड हियर अनदर कॉम्प्लेक्सिटी एक है जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स दैट इज एचएनआरएनए कंटेन exons and interons and are non-functional. This is a non-functional mRNA. जब तक एक्सॉन और इंटरॉन इकट्ठे होंगे दिस इज नॉन फंक्शनल दिस एमआरएनए विल नॉट गेट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स ओके तो अब इसको हमको फंक्शनल बनाना है राइट सो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दिस इज एचएनआरएनए ओके इट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सॉन्स एंड इंटरॉन्स और हम नॉन फंक्शनल है तो हमें इसे इम्प्रोवाइज करना है फंक्शनल बनाना है. Now you see children here, three RNA polymerases in eukaryotes are RNA polymerase 1 transcribes rRNAs, that is ribosomal RNAs. Okay, then is RNA polymerase 2. This will transcribe heterogeneous nuclear RNA, that is hnRNA जो हमने अभी ऊपर देखा. It is a precursor of mRNA because mRNA जो है that is functional. Functional one is the mRNA, but before that, before getting this functional mRNA, it is called hnRNA because it has a mixture of exons and interons, that is heterosomal nuclear RNA. And the third type of RNA polymerase is the tRNA, that is 5S RNA or SN RNAs. Okay, these are the small nuclear RNAs. So we have seen that कि DNA can make RNAs. Okay, DNA can transcribe RNA. पर कौन सा RNA? अगर RNA polymerase 1 है तो it will transcribe ribosomal RNA. अगर RNA polymerase 2 है then it will transcribe hnRNA which will then be polished to make messenger RNA. और अगर RNA polymerase 3 है then it will transcribe or it will make tRNA or 5S RNAs or snRNAs. Okay, that is small nuclear RNAs. The full forms are small nuclear RNAs. तो डिपेंड करता है कि कौन सा RNA पॉलीमरेज है जो जिस टाइप का RNA पॉलीमरेज यूज होगा उस तरह की ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट आएगा. या तो RNA पॉलीमरेज 1 है तो राइबोसोमल RNA बन जाएंगे. अगर RNA पॉलीमरेज 2 यूज हो रहा है तो hnRNA और hnRNA अल्टीमेटली विल लीड यू टू mRNA एंड इफ RNA पॉलीमरेज 3 है तो इसमें से कोई भी RNA बन सकता है राइट. ये यूकैरियोट्स में दिस वी हैव सीन. नाउ कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ना तीन तरह का है तो तीन टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस हो सकती हैं. नाउ यू सी दिस इज डीएनए द रेड लाइंस आर द डीएनए ओके एंड आरएनए जीन आरआरएनए जीन पॉलीमरेज 1 यूज हुआ. प्रोटीन जीन अगर लेते हैं तो पॉलीमरेज 2 यूज होगा क्योंकि मैसेंजर आरएनए और अल्टीमेटली मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा प्रोटीन बनाएगा. और अगर टीआरएनए जीन है तो कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज 3 तो टीआरएनए बन जाएगा. तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जीन सेगमेंट लिया है. अब डीएनए तो बेटा इतना बड़ा है देखो डीएनए इज वेरी लॉन्ग. अब डीएनए में अलग अलग सेगमेंट्स है. अगर डीएनए में ये वाला सेगमेंट यूज हो रहा है तो आई विल गेट द रिजल्ट एज आरआरएनए. अगर डीएनए का ये वाला सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो माय रिजल्ट विल बी एमआरएनए. और अगर डीएनए का इस वाले सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो माय रिजल्ट विल बी टीआरएनए. सो इट डिपेंड्स ऑन द segment of the DNA which is used for transcription. Okay, now let's start with the transcription in eukaryotes. You see primary processing of primary transcripts, that is hnRNA. अब हमें ये तो पता है कि what is hnRNA, heterogeneous nuclear RNA, that means exons and introns are mixed up. Now this requires processing. Now what type of processing? RNA processing होगी यानी हम slicing करेंगे. हम slice करके introns cut कर देंगे, right? Slicing will be done here. Now you see
How splicing is done? From hnRNA, introns are removed by spliceosomes and exons are spliced together. Okay, you see, introns are spliced by spliceosomes. These are the introns. ये reddish portion are the introns. ठीक है, these are the introns. तो हमें इनको splicing करनी है. You see, हमें इनको कट करना है. ठीक है, राइट. सो स्प्लाइसोसोम से हम इनको रिमूव करेंगे एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड टुगेदर. मतलब एक्सॉन्स को हम ऑफ कोर्स अगर इतना पोर्शन बीच में से कट जाता है तो ये दोनों एक्सॉन्स आपस में आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे. नाउ वी नीड टू डू अ कैपिंग. Here a nucleotide methyl guanosine triphosphate, that is cap, is added to 5' end of the hnRNA. You see, first step कैपिंग. सो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया एक 5' एंड पे हमने एक कैप ऐड कर दिया. कौन सा कैप ऐड कर दिया बेटा? यू सी, दिस इज द कैप वी हैव एडेड हियर. मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 P's. You can see here 3 P's. So this methyl guanosine triphosphate behaves as a cap. ठीक है, एट एंड कहां पर कैपिंग ऐड हुई है? एट द 5' एंड ऑफ द hnRNA. ये आरएनए बन के निकल रहा है ना बाहर, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, आरएनए बाहर निकल रहा है. लेकिन हमने देखा जो आरएनए निकल रहा है वो तो hnRNA है भाई, इसमें तो बीच बीच में रुकावटें पैदा हो गई हैं. तो हमने कहा जी इसको तो प्रोसेस करना पड़ेगा. तो प्रोसेस कैसे करेंगे? हमने क्या करा? हमने कैपिंग कर दी. कहाँ पे? 5' एंड पे कैपिंग कर दी. किस चीज से कैपिंग करी हमने? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से कैपिंग कर दी. ठीक है, ये देखो 3 dots cap, right, at the 5' end. Right, now capping हो गई. At tailing, now we have to do tailing polyadenylation, that is here adenylate residues 200 to 300 are added at the 3' end. तो हमको टेलिंग भी करनी है, तो हमने यहाँ पॉली ए टेल ऐड कर दिया, टेलिंग कर दी हमने. ठीक है, 3' end पे. अंडरस्टूड? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. और जब हम कट कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, तो यू सी स्प्लाइसोसोम से दीज आर रिमूव्ड और हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो रेडी हो गया. वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है बेटा. फिर से ध्यान से सुनेंगे. दिस इज माय डीएनए. डीएनए हैज बीन अनवाइंडेड. अनवाइंडिंग कैसे हुई डीएनए की? प्रमोटर रीजन पे पॉलीमरेज आके अटैच हो गया, और पॉलीमरेज जब आके अटैच हो गया तो सिग्मा फैक्टर ने हेल्प किया पॉलीमराइजेशन के लिए, तो आरएनए बनना शुरू हुआ. लेकिन जब आरएनए बनना शुरू हुआ, आप देखो ये आरएनए बनना शुरू हुआ, तो हमने देखा कि आरएनए तो जी एचएनआरएनए बन रहा है, दैट इज हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जिसके बीच बीच में इंटरॉन्स हैं. सो आई वांटेड टू रिमूव द इंटरॉन्स, तो हमने क्या किया? कैपिंग कर दी. कैपिंग कहाँ होती है? 5' एंड पे. किससे होती है? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से. ओके, एंड देन बाय यूजिंग स्प्लाइसोसोम वी स्टार्टेड स्प्लाइसिंग द इंटरॉन्स. ओके, सी, इंटरॉन्स वर स्प्लाइस्ड and the exons were also brought together. Okay, exons were brought together, interons were spliced by using spliceosome. And फिर we also tailed, tailing भी कर दी हमने 3' end पे by the help of poly adenylation tail, and later on we are getting a processed mRNA. So a processed mRNA is with us. So I hope transcription in eukaryotes is clear to all of you. Clear?